I welcome you to my YouTube channel Novel Innovative English Point, and as I always promise to come with some interesting educational and factual topic, today I have come with another interesting topic before which I have uploaded a topic on preposition. Obviously, that a particular video will help you to enhance your speaking skills and writing skills both. Today too, when you go through this video completely altogether, you will come to know how interesting and how important it is to use conjunction in a sentence so that you can enhance your reading, writing and speaking skills. So before I move further, I request you to subscribe to my channel and share it to as many people as possible so that all these things will keep me encouraging, keep me motivating to make such videos and serve you. Or please turn on your notification bell icon so that you can get the further notification of my new videos. Okay, so let's begin. Conjunctions. So conjunction is not just a topic to learn through the rules or through the laws, through norms of English grammar. You must have been learning grammar and even conjunctions ever since you have started learning English. But अभी भी आपको conjunctions को समझने में बड़ी दिक्कत आती होगी. You must have some problem with using the correct uses of conjunctions. Conjunctions को क्यों यूज करें, कहाँ यूज करें, एक्चुअल में इसका फायदा क्या है, क्या conjunctions के बिना sentences नहीं बनते. चलिए, let's know the answer of these questions. I promise you, once you finish this video thoroughly, once you watch this video altogetherly, you will come to know the correct and practical uses of preposition, and as I have mentioned in my thumbnail as well, you will start using conjunctions practically after watching this video. So I request you to watch the video thoroughly. Before I move further, I request you again to please subscribe to my channel and share it to as many people as possible so that they can also enjoy learning. Okay, so let's begin. Conjunction क्या होते हैं basically? What are the conjunctions? So conjunctions are connectors which we have in all the languages, whether you learn Hindi, whether you learn English, whether you learn any other language across the world. पूरी दुनिया में जो भी भाषाएं होती हैं उन भाषाओं में कनेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है. क्लियर? तो एक्चुअल में कंजंक्शन या कनेक्टर्स यूज करते क्यों हैं, हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे. यूज करते कैसे हैं, यू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू. एंड क्या कंजंक्शन के यूज करने के बाद हमारी स्पीकिंग और राइटिंग एबिलिटीज में कुछ चेंजेस आएंगी, विल बी फीलिंग कंफर्टेबल आफ्टर रीडिंग देम. To get this answer, I've already uploaded a video on this particular topic, how preposition conjunction help us to extend the sentences from a one-liner to the paragraph. ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया है. उस वीडियो को मैं अपने descriptive part में I'll actually send the link of this video, so you can go through this video and you will come to know कि conjunction basically किस तरीके से आपको एक सेंटेंस को पैराग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. चलिए देखते हैं एक्चुअल में कंजंक्शंस होते क्या हैं और इनके यूजेस क्या हैं. ओके, सो अगर आप देखोगे, आप जनरली एक सेंटेंस जब भी बोलोगे तो एक सेंटेंस को आगे बढ़ाने का या टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, आप हमेशा चाहोगे कि और भी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाए. या आपने एक सेंटेंस किसी लिसनर से बोला, फिर बोलने के बाद वो लिसनर आपसे सेम सेंटेंस में जो आपने जो भी वर्ड या जो भी चीज मेंशन करी है उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहेगा. जैसे आई वेंट टू ग्वालियर. अब इसमें आई वेंट टू ग्वालियर में यू सी आई वेंट टू ग्वालियर. ओके, मैं ग्वालियर गया. I went to Gwalior. So though the sentence itself is complete, अपने आप में sentence complete है, it actually carries itself the complete information में that has the doer, the action and the object as well. सब कुछ है इसमें. ओके, लेकिन अभी भी
बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन पर्टिकुलर वर्ड्स पर, लाइक जाने का टाइम, जाने का मीन्स, कैसे गए, जाने का रीजन, क्यों गए, जाने का मीन्स या मैनर, ओके, मीन्स ऑफ मैनर, जाने का पर्पस, जाने का रिजल्ट. तो यू सी हाउ अदर एस्पेक्ट्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम वन एक्शन. आपने जो एक्शन किया उस पर और भी कई सारे एस्पेक्ट्स पर क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपका लिसनर आपसे पूछ सकता है कि भाई कब गया, कैसे गया, क्यों गया, क्या फायदा हुआ, किस पर्पस से गया. तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड ऑन वन एक्शन. सिमिलरली सपोज किसी लिसनर को ग्वालियर के बारे में नहीं पता, तो ग्वालियर के बारे में एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको देना है तो या तो आप सेपरेट सेंटेंस बना के दोगे. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू गो टू ग्वालियर, आई वेंट टू ग्वालियर, फिर आपने लिखा आई वेंट टू ग्वालियर 2 days अगो, फिर आपने बोला आई वेंट टू ग्वालियर बाय ट्रेन, फिर आपने बोला आई वेंट टू ग्वालियर टू सी माय फ्रेंड. तो आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको हर बार नया सेंटेंस या यू आर रिपीटिंग द सेंटेंस दैट हैज मेड योर सेंटेंस मेड योर स्पीच मोनोटोनस, अनइंटरेस्टिंग, जिसको कोई सुनना नहीं चाहता बार बार. इवन लिसनर भी ये बोलेगा कि यार तू क्या कर क्या रहा है, एक ही सेंटेंस को बार बार बोल रहा है, स्टॉप सेइंग एनीथिंग. फिर आपसे वो कुछ भी बात नहीं करेगा एंड यू विल बी अ बैड स्पीकर. क्लियर? इट्स बेटर देन टू यूज कंजंक्शन. कंजंक्शन को यूज करना आपको आ जाएगा तो आप इसी सेंटेंस को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बना सकते हो. जैसे आई वेंट टू ग्वालियर, जैसे हम पहले ग्वालियर की इंफॉर्मेशन देते हैं, which is one of the biggest cities of मध्य प्रदेश एमपी. आगे आप टाइम देना चाहते हो, while you were at your grandparents' house. Clear? Okay. Because I had to appear at an exam so that I could get a college for further study consequently I traveled by train first time. चलिए, now you had only this sentence initially. आपके पास केवल एक छोटा सा सेंटेंस था which you can now construct. बड़े आराम से आप बना सकते हो क्योंकि इसका फॉर्मूला या इसको बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको इन माय अदर वीडियोस बता चुका हूं, जहां पर आपने 3 क्वेश्चंस पूछे, हु, व्हाट एंड हु. क्लियर? किसने क्या किस पर किया. इस सेक्शन का इन 3 क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपका एक सेंटेंस बना, आई वेंट टू ग्वालियर. अब
आपने which, आपने why and because and so that and consequently. Using these important conjunction आपने एक छोटे से पैराग्राफ को इसमें कन्वर्ट कर दिया, छोटे से सेंटेंस को सॉरी एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया. देखो जरा, आई वेंट टू ग्वालियर विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ एमपी while you were at your grandparents' house because I had to appear at an exam so that I could get a college for the study. Consequently, I traveled by train first time. तो मैं ग्वालियर गया. ग्वालियर जो कि एमपी का बड़े बड़े शहरों में से एक है. जब तुम कहाँ थे? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर, क्योंकि मुझे एक एग्जाम में जाना था जिससे मुझे एक कॉलेज मिल सके आगे की पढ़ाई के लिए. और इस तरीके से कॉन्सिक्वेंटली मैंने पहली बार ट्रेन में ट्रैवल किया. सो दिस इज टेलिंग मोर अबाउट ग्वालियर. दिस इज टेलिंग द टाइम ऑफ इज गोइंग. दिस इज टेलिंग द रीजन ऑफ योर गोइंग एंड दिस इज टेलिंग द पर्पस एंड दिस इज टेलिंग द रिजल्ट. तो आपने कंजंक्शंस की हेल्प से किस तरीके से एक सेंटेंस को पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया. It will not only help you in increasing and enhancing your skills in writing and speak, but also ये सब चीजें आपको एग्जाम में भी काम आती हैं. क्लोज टेस्ट हुआ, कंपेटिटिव एग्जाम जो होते हैं, क्लोज टेस्ट हुए, या फिर आपकी रीडिंग स्किल्स हुए, कॉम्प्रिहेंशन जो बड़े बड़े आते हैं उनको समझना, या फिर और भी कई सारी चीजें हैं, ब्लैंक्स आते हैं, फिलर्स आते हैं. सो मेनी थिंग्स आर देयर जिनको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं if we know the correct uses of conjunctions. Okay, अगर आप चाहते हैं कि I make a separate video, an extended video on conjunction, please mention this to my comment section. I'll try my level best to upload a video in detail on conjunctions as soon as possible. Okay, and तब तक के लिए please subscribe to my channel and share it to as many people as possible. आज के लिए इतना ही. Thank you.